જામનગરમાં એસબી શર્મા સ્કૂલનું નામ ખૂબ જ મોટું છે, કારણ કે છેલ્લા 22 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવામાં એસબી શર્મા સ્કૂલનો જામનગરમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો છે। જામનગરમાં એસબી શર્મા સ્કૂલ 3 સ્થળે કાર્યરત છે। એક બ્રાન્ચ દિગ્જામ મિલ પાસે છે, બીજી શાખા મેઘપર નજીક છે અને ત્રીજી શાખા મેહુલનગર પાસે છે। મેહુલનગર ખાતેની શાખામાં જીએસસીબી ઉપરાંત આઈસીએસઈ અને આઈએસસીના અભ્યાસક્રમો પણ ચલાવવામાં આવે છે। આ ત્રણેય જગ્યાએ 1 થી 12 ધોરણનો ઇંગ્લિશ મીડિયમના અભ્યાસક્રમ કરવામાં આવે છે। આ ત્રણેય સ્કૂલની ભવ્ય સફળતા બાદ કોલેજ ક્ષેત્રે આ સંસ્થાએ શરૂઆત કરી છે। મેહુલનગર એસબી શર્મા વર્લ્ડ સ્કૂલના સંકુલમાં જ એસબી શર્મા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ એન્ડ રિસર્ચ 2022થી શરૂ કરવામાં આવી છે। નર્સિંગનો ANM કોર્સ માટે આ કોલેજમાં એડમિશનની પ્રક્રિયા ચાલુ છે। ANM નર્સિંગ કોર્સ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રવાહમાં ધોરણ 12 પાસ કરવું જરૂરી છે। 35 વર્ષની વયમર્યાદાવાળા બહેનો નર્સિંગનો ANMનો કોર્સ કરી શકે છે। આ ANM નર્સિંગનો કોર્સ 2 વર્ષનો હોય છે। 2 વર્ષના આ કોર્સમાં પ્રત્યેક વર્ષની ફી ₹45,000 રાખવામાં આવી છે। આ કોર્સ કરનાર છાત્રાઓને સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં નોકરી ખૂબ જ સરળતાથી મળી રહે છે। ખૂબ જ ઓછા ખર્ચમાં અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ કોર્સ થતો હોવાના કારણે બહેનો આ કોર્સ કરવા માટે ભારે ઉત્સાહિત હોય છે। આ તમામ વિગતોનો વાર્તાલાપ કરવા માટે જીટીબીએલ જામનગર ન્યૂઝના મેનેજિંગ એડિટર જયેશભાઈ રૂપારેલિયાએ એસબી શર્મા સ્કૂલના કેમ્પસ રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર RD દીક્ષિતની વિશેષ મુલાકાત લીધી હતી। આ મુલાકાતના મુખ્ય અંશો અત્રે પ્રસ્તુત છે। જીટીબીએલ જામનગર ન્યૂઝમાં તમામ દર્શકોનું સ્વાગત છે। આજે અમે લોકો જામનગરની ખ્યાતનામ જે સ્કૂલ છે એસબી શર્મા સ્કૂલ ખાતે આવ્યા છે અને ખાસ કરીને એસબી શર્મા સ્કૂલ જે છે છેલ્લા 22 વર્ષથી જામનગર લેવલે 3 બ્રાન્ચ ધરાવે છે અને પહેલી એમને જે હતી એ દિગ્જામ સર્કલ ખાતે એમને શરૂઆત કરી હતી, જે વુલન મિલની બાજુમાં છે, ત્યાં પણ મોટી ક્વોન્ટિટીમાં લોકો અભ્યાસ કરે છે, વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને પછી એના પછીની વાત કરીએ તો મેઘપર ખાતે પણ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એમને રિલાયન્સની સામે જે મેઘપર છે ત્યાં પણ આ રીતની એસબી શર્મા સ્કૂલ ચાલુ છે અને એમાં પણ એમને ભારે સફળતા મળી છે અને એ સફળતાને ધ્યાનમાં રાખી એસબી વર્લ્ડ સ્કૂલ જામનગર ખાતે મેહુલનગર ખાતે એમણે છેલ્લા 7-8 વર્ષથી સ્થાપિત કરી છે। એટલે 2014ની અંદર એ એક્ટિવ થયા છે અને અહીંયા પણ એક સમાજ કરતાં એક ડગલું આગળ હોય એ રીતે CBSE કોર્સ તો લોકો ભણાવે જ છે, પણ આ ICSE કોર્સ લઈને આવ્યા છે અને ત્યાં પણ વિદ્યાર્થીઓ જે રાજકોટ અને અમદાવાદની અંદર તો આ બાબતનો બહુ લોકોને પરિચય હોય છે ICSE કે જેથી કરીને ત્યાં પણ લોકો વેઇટિંગમાં એનો નંબર આવતો હોય, પણ અહીંયા જામનગર લેવલે પણ શર્મા સાહેબે અહીંયા એક સારી મુવમેન્ટ શરૂ કરી છે અને અહીંયા પણ 900 વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ICSE બોર્ડની અંદર લોકો ભણે છે અને એમાં 3 સ્કૂલની અંદર સફળતા થયા બાદ એમણે જામનગર ખાતે એક નર્સિંગ કોલેજ બનાવવાની માનસિકતા હતી કે ભાઈ મને હવે દિવસે દિવસે એનો ક્રેઝ વધ્યો છે, દીકરીઓ જે છે એ નર્સિંગ તરફ ક્રેઝ થયો છે, કારણ કે એમાં સારી રોજીરોટી મળે છે, સારો પગાર મળે છે, સારી સેલેરી મળે છે। એટલે એસબી શર્મા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ નામની એક સંસ્થા પણ એમણે બનાવી છે અને એ ચાલુ વર્ષથી એટલે કે 2022થી મુવમેન્ટ શરૂ થઈ છે। અત્યારે એડમિશનની કાર્યવાહી ચાલુ છે અને ત્યાં પણ મેં હમણાં ઉપર જોયું છે સારામાં સારી બધી વ્યવસ્થા છે, ઉપર પૂરેપૂરી જગ્યા છે અને ખાસ કરીને જે એના અનુભવી જે છે એવા જે કેમ્પસ રજિસ્ટ્રાર જે તરીકે જે આ નર્સિંગ કોલેજનો જે બહોળો અનુભવ ધરાવતા એવા ડૉક્ટર RD દીક્ષિત સાહેબને એની જવાબદારી આપી છે અને અહીંયા એડમિશનનો પ્રવાહ ચાલુ છે। તો આપણે દીક્ષિત साहब ने पूछा कि सर ये जो कॉलेज शुरू किया है एसबी शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपने उपलब्ध किया है? सर ये नर्सिंग का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है और ये 2 इयर्स कोर्स होता है। इस कोर्स की सबसे अच्छी विशेषता क्या है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट जो 12वां पास है, वो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो, सभी तरह के स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं और मेडिकल एक्सपर्ट मीन्स दे कैन रेंडर द मेडिकल सर्विस टू एनी हॉस्पिटल। वो किसी भी हॉस्पिटल में नर्सिंग की सेवा दे सकते हैं। सर इसमें क्या थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहता है? इनका 2 साल का एकेडमिक कोर्स होता है। इनके लिए हमारे पास लैब है, 5 लैब हैं और एज वेल एज ये कोर्स गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज होता है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग लेने जाते हैं और ये जो PSC सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, उनमें भी उनकी 3-3 महीने की ट्रेनिंग होती है सब जगह पे।
और इस ट्रेनिंग के बाद में जब उनका एग्जामिनेशन होता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, उनको पासिंग डिप्लोमा पास का सर्टिफिकेट मिलता है। और लगभग सभी स्टूडेंट, ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है स्पेशली बहनों के लिए कि सबसे जो अब आज के समय में जो अगर बोला जाए आत्मनिर्भर, बहनों को आत्मनिर्भर बनाए, तो ये एक आत्मनिर्भर बनाने का कोर्स है जिसमें बहनें आत्मनिर्भर हो सकती हैं। एएनएम करने के बाद ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत कम बहनों को आप अनएम्प्लॉयड देखेंगे। ये पहला एक मेडिकल का एक पहला कोर्स होता है जो नॉन स्पेसिफिक मेडिकल क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी बहनें इसमें एक्सपर्ट बन जाती हैं। ये कोर्स ऐसा होता है कि हर हॉस्पिटल में कम से कम 2 एएनएम 3 एएनएम कंपलसरी होते हैं, क्योंकि ये बेसिक सर्विस रेंडर करती हैं, बेसिक सर्विस देती हैं हर हॉस्पिटल में। ये नर्सिंग कोर्स में पूरी ट्रेनिंग पूरी मिल जाती है? हाँ, नर्सिंग कोर्स में एक तो स्कूल कॉलेज लेवल पे बहनों को ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि हमारे पास 5 लैब होती हैं। एकेडमिक पढ़ाने के साथ साथ में जो चीज़ हम पढ़ाते हैं सेम चीज़ उनको लैब में उनको सिखाई जाती है। हमारे जो ट्यूटर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं, उनको पूरी तरह से बढ़िया बहनों को ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद उनको गवर्नमेंट ट्रेनिंग में भेजा जाता है। लाइक हमारा जीजी हॉस्पिटल है, हम उसके साथ और हमारे पर्टिकुलर कुछ हॉस्पिटल्स हमारे एमओयू में होते हैं। जैसे हमारा ये हॉस्पिटल, हमारा जो ये कॉलेज है कलरव हॉस्पिटल, आप जानते होंगे डॉक्टर डीएम पोपट साहब का कलरव हॉस्पिटल है, उसमें बच्चों की ट्रेनिंग होती है। तो हमारी ये सब बहनें, सब नर्सिंग बहनें हमारे मतलब चाइल्ड स्पेशलाइजेशन के लिए वहाँ जाएंगी। हमारा डॉक्टर बख्शी साहब के अंडर जो हमारा हॉस्पिटल है, वो हमारा हॉस्पिटल इसमें इसके साथ एमओयू है। दूसरा हॉस्पिटल हमारा खुड़ियार कॉलोनी में है। तो इस तरह से 2-3 हमारे बहुत बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, जिनको हम ट्रेनिंग के लिए, हमारी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए हम वहाँ भेजते हैं। और एज वेल एज दे गो फॉर गवर्नमेंट ट्रेनिंग आल्सो। जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हैं, उनके जो सेंटर्स हैं, उनके मेडिकल सेंटर्स हैं, उनमें भी ट्रेनिंग करने के लिए हमारी ये बहनें जाती हैं। और जो लैब की बात है, तो कितनी लैब आपने यहाँ उपलब्ध किया है? हाँ, हमारे यहाँ पे 5 लैब हैं। जैसे फर्स्ट लैब है वो हमारी फंडामेंटल लैब है, जो फंडामेंटल चीज़ें, जो प्राइम चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, वहाँ से उनको शुरुआत होती है। दूसरी चीज़ें ओबीजी एंड एमसीजी लैब, ये जो है स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी और एमसी मतलब चाइल्ड हेल्थ केयर के इससे कंसर्न है। तीसरी हमारी लैब है जो हमारी जिसको एनाटॉमी लैब बोलते हैं। एनाटॉमी लैब में क्या होता है साहब कि हम शरीर के अंदर जो पूरा शरीर की बनावट है, कैसे फंक्शन पूरा शरीर करता है और उसकी क्या क्या डिपार्टमेंट, सब पूरा हम, क्योंकि ये स्टूडेंट इस तरह से आए होते हैं जो मेडिकल ग्राउंड से नहीं होते, तो पहले हम उनको मेडिकली बेसिक मेडिकली तरीके से हम तैयार करते हैं। फिर इसका एक कम्युनिटी लैब है। तो कम्युनिटी लैब में क्या होता है कि जो हर्ड होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पे इनको किस तरह से उनको सर्विस देनी है। एक उनका कम्युनिटी बैग होता है, उस बैग के अंदर जो बहनों को, जो भी हम गांव के अंदर, जो रूरल एरिया के अंदर हम काम करने जाते हैं, उस बैग के अंदर उनके सब पूरे आइटम्स होते हैं। मैंने शायद आपको पहले उसमें दिखाया होगा। ये जो स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं, तो इसको कितना % चाहिए? चूँकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये गवर्नमेंट का बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कोर्स है, तो इसमें ऐसा कोई परसेंटेज बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रखता। बट हाँ, एवरेज स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हर चीज़ को समझ सके, हर चीज़ को डिस्क्राइब कर सके और उस चीज़ को पढ़ सके, लिख सके और एक्सप्रेस कर सके। कुल ये 2 साल का कोर्स है? हाँ, ये 2 इयर्स का कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है, डिप्लोमा कोर्स है। ये सर कौन से यूनिवर्सिटी ये मान्यता देती है? हाँ, ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि गुजरात नर्सिंग जो काउंसिल है वो इसको मान्यता देती है, और वहाँ के द्वारा हम पूरा कोर्स उनके द्वारा ही रिकॉग्नाइज है, और वही हमको मतलब हम हमारे लिए वही हमको एडवाइस करती हैं, और उन्हीं की एडवाइजरी पे प्लस जीजीएच जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ की नर्सिंग की बहनों को वो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। और बाद में समझो 1 साल अभ्यास करने के बाद इसकी एग्ज़ाम भी होती है? हाँ, इसके लिए जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंडर में बहनों का एग्जामिनेशंस होता है। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका वहाँ पे उनका एग्जामिनेशंस होता है, उनका रिटन एग्ज़ाम होता है, उनका वाइवा होता है, उनका प्रैक्टिकल्स होता है। जब उनमें सब में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब उनको सक्सेसफुल होने के बाद में उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। एंड देन दे अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड डिफरेंट प्राइवेट जॉब ऑल्सो।
हाँ। और सर ये समझो एडमिशन के लिए ये लोग ऑनलाइन करना पड़ता है कि यहाँ खुद यहाँ आना पड़ता है? हाँ सर, इसके लिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, पहले गवर्नमेंट जाहिरात करती है कि ANM के लिए ये डिप्लोमा कोर्स चालू हो रहा है, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करो। स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करता है, फिर इसके बाद जो उनकी स्क्रूटनी होके उनको उनका नाम एज पर उनकी चॉइस के हिसाब से उनका नाम डिक्लेयर होता है। जैसे फर्स्ट राउंड हुआ तो फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स का नाम उनके चॉइस के हिसाब से उन स्कूलों में जाता है। फिर उन चॉइस के हिसाब से स्टूडेंट गवर्नमेंट में रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई, हम इसके एडमिशन्स के लिए हम इस जगह पे एग्री हैं। तो वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं। उनके डॉक्यूमेंट होने के बाद में फिर उनको ऑर्डर मिलता है, वो पर्टिकुलर कॉलेज में जाते हैं और अपना एडमिशन्स लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ में बहनों को चॉइस भी दी है कि नेक्स्ट स्टेप, जैसे मान लिया उनका एडमिशन हो गया, कंफर्म हो गया, मान लिया अगर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो गवर्नमेंट का सेकेंड राउंड आता है, उनको सेकेंड चॉइस मिलती है, उनको थर्ड चॉइस मिलती है। वो इसलिए कि चूँकि इसमें बहनें होती हैं तो उनको मैक्सिमम उनको कन्वीनियंट की जगह मिल जाए ताकि वो ये कोर्स कंप्लीट कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें, इसलिए गवर्नमेंट की। सर यहाँ ऑफलाइन एडमिशन नहीं मिलता? ऑफलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया बाद में, जैसे ये गवर्नमेंट में आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट के राउंड आएंगे, राउंड आने के बाद में वो गवर्नमेंट की एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। फिर इसके बाद जो बहनें बचेंगी, मान लिया वो लोकल हैं तो लोकल, उस पर्टिकुलर लोकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट ऑल एवरी 20 किलोमीटर, एवरी 30 किलोमीटर वी हैव गॉट द ANM स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो वो वापस गवर्नमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में दे कैन अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर टू नियरेस्ट स्कूल और नियरेस्ट कॉलेज, ANM कॉलेज। सर मैंने सुना है इसका जो फी का धोरण है वो बहुत बड़ा रहता है, 70,000 से लेके 1 लाख से ज़्यादा भी रहता है। तो आपके स्कूल की फ़ी क्या है? हाँ सर, ये तो सर जो धोरण वाइज फीस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो अपना फीस का स्टेटस दें। हमारे यहाँ चूँकि हमारे लिए तो ये वेलकम ईयर है, दिस इज़ ए वेलकम ईयर फॉर ANM स्कूल्स, तो हमने बहुत मिनिमम फीस रखी हुई है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हमने 50% फीस 45,000 हमने ईयरली फीस रखी हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारे, और दूसरी चीज़, हमारा स्कूल बिल्कुल सिटी के बीच में है जहाँ की बहनें आराम से आ सकती हैं और आराम से अपना एजुकेशंस लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सर इसमें हॉस्टल की व्यवस्था है? या हमारे पास में हॉस्टल की व्यवस्था है, पूरी हॉस्टल की व्यवस्था है। और ये जो संस्था है, स्पेशली SB शर्मा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे शर्मा जी हैं, शिवसागर जी शर्मा, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा के लिए ही काम कर रहे हैं। और उनके आपने डिफरेंट, इसके पहले भी आपने खबरिंग दी होगी। तो ये भी संस्था ऐसी संस्था है कि जो बहनों को उनका पहले एक विजन था कि हम कम से कम बहनों के लिए आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। हम बहनों को इस तरह से मतलब आत्मनिर्भर बनाएं कि जो बेचारी जो किसी भी रास्ते पे नहीं जा सकी, स्पेशली कॉमर्स है, स्पेशली आर्ट्स है, उनके लिए सब रास्ते, मैरिज हो जाती है, बंद हो जाती है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा रास्ता खोला है बहनों के लिए, ताकि सिटी से उनको बाहर ना जाना पड़े, सिटी के अंदर उनको ये व्यवस्था मिल जाए और वो इसके लिए मतलब मेडिकल तरीके जो है वो एक्सपर्ट बन सकें और डिफरेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे सकें और अपने परिवार को मतलब मदद रूपे तैयार हो। सर ये एडमिशन के लिए लोग आ सकते हैं यहाँ पे? ये कोर्स की जहाँ तक बात है, ये कॉलेज कब से शुरू होगी? हाँ, कॉलेज की सब अभी अनदर 20 डेज़ में 15 to 20 डेज़ में गवर्नमेंट की एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद में कॉलेज अपने लेवल पे एडमिशन्स देना शुरू करेंगे। तो जो भी बहनें हैं और आप इसमें एडमिशन्स लेकर वो अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं, जो रियली जो सोसाइटी की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, रियली जो समाज की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, उन बहनों को हम वेलकम करते हैं। वो बहनें हमारे यहाँ मतलब आकर और अपना एडमिशन लेके 2 साल हम, और ये हम गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ जो बहनें आएंगी, पहली बात
तो उनको हम ये हमारे यहाँ स्टेबल से ये हमारी गारंटी है कि उनको हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, उनको हमारे लेवल पे हम उनको लेबोरेटरी में अच्छी तरह ट्रेन करेंगे और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें, कदाचित वैसे तो हमने इस प्रीमाइसेस को इतना अच्छा बनाया है, आपने देखा होगा कि हमारी सभी लैब्स हैं, लोग कैसी लैब बनाते हैं। आज इस लैब को इस तरह से तैयार किया है कि हर बहन एक अच्छी तरह से वहाँ से लैब से अपने ट्रेंड होकर अच्छा शिक्षण लेके, और इसके साथ साथ में हमारे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सब हमारे टाई अप में हैं। सर, ये नया साल है, पहली बार आपने ये कॉलेज शुरू किया है, आपका तो कितना सीट कितने मिली है आपको या मंजूरी गवर्नमेंट की? हमको गवर्नमेंट ने इस साल, पहले साल उन्होंने हमको 20 सीट अलॉट किए हैं। ये गवर्नमेंट से आती हैं और हम हर साल हम 10 सीट हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर साल हम 10 से 15 सीट हम इन्हेंस करवाएंगे गवर्नमेंट से। और सर समझो कोई लोगों ने अभी जो बेना है इसने ऑनलाइन नहीं फॉर्म भरा है, तो ये भी आ सकते हैं, समझो ऑनलाइन नहीं भरा, एडमिशन नहीं, तो ये आ सकते हैं यहाँ पे? कोई भी बहन जिसकी इच्छा मेडिकल फील्ड में बढ़ने की, उसने ऑनलाइन की प्रक्रिया में भाग नहीं किया, उसके बावजूद भी हम उनको इसमें अपॉर्चुनिटी देंगे, हर हालत में हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे और कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं। आप ऐसा नहीं सोचिए कि ये बहनें आ गई तो हम उनको मैनेजमेंट कोटा में 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लेके आए, नहीं, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। इस साल हम जितनी बहनें हमारे पास में आएंगी हम उनको इसमें एडमिशन देंगे और उनको बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छी तरह उनको हम एक्सपर्टाइज के रूप में हम तैयार करके वो अपने मार्केट में जाके अपनी सर्विस दे सकती हैं। सर, इसमें ANM का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स। तो सर एक कोई भी सामान्य व्यक्ति बार पास होना चाहिए? बाहर पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, बस 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। चाहे वो गुजरात का बोर्ड का हो, चाहे किसी भी बोर्ड का भी हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि वो गुजरात का ही हो। हाँ, लेकिन गुजरात में अगर रह रहे हैं तो ये गुजराती बहनों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये कोर्स गुजराती कम इंग्लिश में होता है। और आपने फर्स्ट साल लिखा है तो इसमें फी में भी आपने बहुत डाउन किया है। हाँ, हमारे शर्मा जी और हम ये चाहते हैं कि मतलब बहनें कम से कम पैसे में, जो हमारे पास आज वो एडमिशन लेंगी तो वो कम से कम पैसे में, क्योंकि कॉस्टली तो होता है बट कम से कम पैसे में वो हमारा पहला बैच ऐसा रहेगा जो फाउंडर बैच होगा। तो हम ये चाहेंगे कि वो हमारा पहला बैच, फाउंडर बैच, कम से कम फीस में अच्छी तरह एजुकेशन लेके और अच्छी तरह एक्सपर्टाइज होके वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें, कोशिश करें। और 100% आज के ऐसे समय में, ये कोरोना के समय में, एक भी बहन ANM अगर उसके पास सर्टिफिकेट है वो घर में नहीं बैठी हुई है। सर, ये ANM आने के बाद इसको जॉब की जहाँ तक बात है तो इसमें सैलरी कितना मिलता है? ये हॉस्पिटल वाला कितना देता है? एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, गवर्नमेंट में जो सर्विस मिलती है तो मिनिमम 20 से 22 हज़ार का उनका स्टार्टिंग होता है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ एनहेंस किया है, वो रिसेंटली वो एनहेंस होता रहता है। और रही प्राइवेट तो वो कॉलेज के, वो हॉस्पिटल के स्टेटस के ऊपर है कि हॉस्पिटल का जहाँ वो सर्विस करने जा रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो बहनें ट्रेंड होती हैं उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनको जगह मिलती है और उनको वहाँ मिनिमम 10 to 15,000 उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। मीन्स ये कोर्स करने के बाद बहनों को बहुत अच्छी तरह वो अपनी अच्छी सर्विस अच्छे हॉस्पिटल में और अपने इच्छा के हिसाब से अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल सेलेक्ट करके और वो अपनी सर्विस दे सकती हैं। सर, ये नर्सिंग बोलते हैं तो इसमें बॉयज़ नहीं आ सकते? हाँ, ये कोर्स ऐसा होता है, एक नर्सिंग, इसका नाम ही ऐसा है, ऑक्सिलरी मिडवाइफरी नर्सिंग होम। ये बहनें, इसमें बहनों को हम एक ऐसा मानते हैं कि वो स्वभाव से ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा सर्विस वाली होती हैं, बाय देयर नेम्स, बाय देयर गॉड गिफ्टेड नेचर। तो ऐसा हम मानते हैं कि क्योंकि स्पेशली इस तरह की बहनें हॉस्पिटल में, जो गायनिक हॉस्पिटल हैं, जो बच्चों के हॉस्पिटल हैं, जो इस तरह के हॉस्पिटल है उसमें सर्विस के लिए रखा गया है, जहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है कि जो मतलब नीचे लेवल से सर्विस देने की कोशिश करता है और हाईएस्ट लेवल तक ये सर्विस देता है हॉस्पिटल में। ये एक ऐसा कोर्स है। तो बहनों को हम मानते हैं, बहनों को, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि बहनों को ही क्यों, तो बहनें सबसे ज़्यादा
माताएं बहनें सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं और सबसे ज़्यादा पोलाइट होती हैं। आदमी का स्वभाव कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एट टाइम्स वो थोड़ा सा हाइपर भी हो सकता है, पर बहनों को हमने देखा, ये हमारी लाइफ का तजुर्बा है कि बहनें कभी भी हाइपर नहीं होती, वो हमेशा पोलाइट होती हैं। और सर अगर आपने देखा होगा कि जो स्पेशली जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बहनों का पोलाइट होना, जो गायनिक हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बहनों का पोलाइट होना, बहनों को पोलाइटली सर्विस देना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये कोर्स बहनों के लिए ही ऑफर्ड किया गया है गवर्नमेंट की वजह से। और हमारे नर्सिंग काउंसिल बातें समझो, ये 2 साल का कोर्स है, 3 साल का भी कोर्स आता है? नहीं सर, ये हमारा कोर्स 2 साल का ही होता है। इसमें 3 साल 4 साल के अलग कोर्स होते हैं, जैसे GNM है, BSc नर्सिंग है, वो 3 साल 4 साल के लिए कोर्स होते हैं। इसमें सर एज की जहाँ तक बात है, समझो 5 साल पहले इसने पढ़ लिया है, इसके पास 12वां धोरण का पास का सर्टिफिकेट है, तो चलता है? हाँ, कोई भी बहन, कोई भी स्टूडेंट जिसकी एज 35 ईयर्स तक है, उसने भले कहीं काम किया है नहीं किया है, कुछ वर्क किया है नहीं किया है, वो हाउस वाइफ है, हर बहन यहाँ पे वेलकम है। अप टू 35 ईयर्स ऑफ देयर एज दे कैन टेक द एडमिशंस एंड दे कैन डू दिस कोर्स, वो ये कोर्स कर सकते हैं। साहब आनो जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल क्या रहता है? इसको कितने समय इसको पढ़ने आना होगा? हाँ, इसका जनरली टाइम टेबल, अब बहनों को क्या है, जो बहनें हमारी आती हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, मैरिड भी हैं, क्योंकि 35 ईयर्स एक ऐसी एज हो जाती है कि बहनें ज़्यादातर मैरिड हो जाती हैं, तो उनको हमको बेसिक लेवल से तैयार करना पड़ता है। उनके लिए थोड़ा सा इंग्लिश क्लास लगाना, उनको इंग्लिश में तैयार करना, ये और किसी स्कूल में उपलब्धता नहीं है। हमारे स्कूल में हम उन बहनों को स्पेशली थोड़ा इंग्लिश लेवल, क्योंकि मेडिकल कोर्स ऐसे हैं कि सब जगह पे गुजराती लैंग्वेज नहीं चलती, मेडिसिन हमको बाँचना है या कुछ हमको करना है तो वो गुजराती लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, तो हम उन बहनों को थोड़ा सा इंग्लिश लेवल पे भी, इंग्लिश सब्जेक्ट को भी हम उनके साथ मिलकर हम उस सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं। और रही बात बहनों की, तो हमने इसका टाइम टेबल सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक का रखा हुआ है। तो उनको 9 से फर्स्ट हाफ में उनका एकेडमिक होता है, मतलब उनके सब सब्जेक्ट के क्लासेस चलते हैं, और हाफ रिसेस के बाद में उनके सबके जो भी आज पढ़ाया गया है उसके प्रैक्टिकल्स, उनके लैब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। આ જોયું તમે કે ડૉક્ટર RD દીક્ષિત સાહેબ હતા, કેમ્પસ રજિસ્ટ્રાર છે અને એમનો બહોળો અનુભવ છે, એટલે એ માટે થઈ એને પેટ ખોલીને બધી વાત કરી છે અને જે લોકોને આ બાબતનો એક જનરલ નોલેજનો ભાગ પણ હતો એટલે એમને ત્યાં તો આ બધી સારી વ્યવસ્થા ઊભી કરી જ છે। ખાસ કરીને SB શર્મા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ ખાતે તો આ બધી વ્યવસ્થા સુપર ઊભી કરી છે, પણ સામાન્ય લોકોને આ બાબતનું જનરલ નોલેજ આવે ને ખાસ કરીને જે લોકોએ અહીંયા પુત્રવધુ થઈને આવ્યા છે, જે લોકો દીકરી થઈને દીકરીમાંથી વહુ થઈને આવ્યા છે, એ લોકોએ 12મું ધોરણ પાસ કર્યું છે, એ લોકો પણ આની અંદર ભાગ લઈ શકે છે। ઉંમરની વાત કરીએ તો 35 એટલે કે 35 વર્ષની ઉંમરની મર્યાદા હોય છે આની અંદર, એટલે આત્મનિર્ભરની જે વાત આવે છે, જે લોકો પોતાના પગ ઉપર રહેવા માગે છે એને ખરેખર આ નર્સિંગનો જે કોર્સ છે ANMનો એ કરવો જોઈએ। 2 જ વર્ષનો કોર્સ હોય છે અને વાત આવી ફીના ધોરણની, તો એ લોકોનું ફર્સ્ટ વર્ષ છે એટલે ગવર્મેન્ટની એક પોલિસી છે, એની જે ઉદારતા છે એ પ્રમાણે માત્ર 40,000 રૂપિયાની અંદર 1 વર્ષની ફી થશે। SB શર્મા કોલેજ ઓફ નર્સિંગ જે આવ્યું છે એ મેહુલનગર ખાતે આવ્યું છે અને ખાસ કરીને JMCનું જે વૃદ્ધાશ્રમ છે એની બાજુમાં આ એક SB શર્મા સ્કૂલ જ છે, પણ એની પ્રિમાઇસીસ છે એ ઉપર બીજા ત્રીજા માળા ઉપર સુપર આ લોકોએ વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે એડમિશનની જે પ્રક્રિયા છે એ ચાલુ છે। અને કાંઈ પણ વધારે વિગત જોઈએ તો આ સ્કૂલનો સંપર્ક કરશો। ખાસ કરીને દીક્ષિત સાહેબ છે એ ભારે ઉત્સાહી છે અને દિલથી લોકો સાથે જોડાયેલા છે, અને એનો એક ભાવ છે કે લોકો પગભર થાય, કારણ કે આવતા દિવસોમાં આ ફાઇનાન્સ છે એટલે પૈસા છે એ બહુ મોટી ચીજ બનવાની છે અને બને જ લોકોને ખ્યાલ છે કે પૈસા વગર ચાલે એમ નથી, અને ખાસ કરીને ઘરમાં જેટલા 3-4 મેમ્બર હોય છે એ બધા કમાય તો જ આ બધું ભેગું થાય છે। અત્યારની જે સમાજની જે મોંઘવારી વધે છે, સમાજની જે પરિસ્થિતિ બદલી છે, તો આપણે એમાં પણ આપણે વેલકમ કરવું પડશે। અને આ રીતે SB શર્મા સાહેબે જે આ રીતે 3 સ્કૂલ કરી છે, ખાસ કરીને એની અંદર 2,000 થી 2,500 વિદ્યાર્થીઓ ઓલરેડી ભણે છે, એનો જે બહોળો અનુભવ છે, એનું જે સમાજને કંઈક આપ્યું છે અને સમાજને આપવું છે એવી ભાવનાથી આ લોકો વર્કઆઉટ કરે છે। અને ખરેખર આ નર્સિંગ સ્કૂલનો છે જે શર્મા સાહેબે જે સ્કૂલ શરૂ કરી છે એનો ખરેખર લાભ લેવો જોઈએ।